and welcome to Bet Ball and Banter. This is Mulke, this is Rahul and Shubham. Here we are discussing about Indian cricket series related to West Indies and Ireland and what is its impact over India's position in World Cup. So Shubham, where do you want to start? I think we had a couple of test matches, then an ODI series and then two T20 series with West Indies and Ireland. If we start with test matches, I think we had a pretty good series. We finally saw Virat Kohli play a flawless innings, and it was very reassured in a tricky surface, scoring that 100. And all those doubts, whether he's past his peak or what, they have now gone, and we are all back to seeing Kohli at his best. And likewise, Rohit also had a very big series. He scored 100 and a couple of 50s. So that was very important to see, because of late our top order has not been contributing that much. Yeah, in the test it is pretty much like that, and how Ashwin contributed as well. I think so. How many wickets? 12 I think. 12 in the first match. That's a pretty big thing, I think so, on a Caribbean wicket. Yeah, it's good to see the veterans actually performing and taking the load. Not just a veteran, even the debutant Yashasvi. Yashasvi also performed really well. Yeah. So related to score, like I think so, India scored 400 plus. Yeah, 400 plus twice in both the matches. And West Indies was lagging at 140 or something. I think they were out for below 200 every time. Yeah. Sorry. Below 200 they were done with it. And partnership was also not that well to contribute on such kind of matches where you are trying to handle that 400 run, right? और क्या रहा इसमें ODI matches? ODI matches, I think we had just 3 matches. We won 2-1. I think we won 2-1 or 3-0. But still, it was not a perfect series given how close we are to the World Cup. We saw our top order fail. Obviously, Virat Kohli didn't bat entire series. Rohit Sharma played just one match. But the one thing that was missing was, Shubman Gill was, he still couldn't get that form after that IPL. So I think it was not a great series for India, despite the result being in our favor. Yeah. And we have won all the ODI matches also? No, I think the second match was won by West Indies. What about T20 matches, T20Is, in which we saw T20 was a disaster. Like West Indies was like totally thrashing India out. Although people are questioning about Rohit and Kohli not being involved in the team, but what is the team's temperament? What's the team dependability after they both are gone and there is someone to be replaced? I think they've seen the anchor wala thing, Virat Kohli, Rohit Sharma, KL Rahul, that thing is not working out in the past 2 T20 World Cups. So I think they have decided, let's move ahead and keep these things for youngsters only. And especially we have a ODI World Cup, so it makes sense to try out all the new players, all the new combination, even the strategies. So I think this question is for later, after the ODI World Cup. Will Virat Kohli and Rohit Sharma return? But still we have to see how did this T20 series fare, and especially captaincy of Hardik Pandya. Yeah, for the summary of the series, in our test matches, India on the first test match scored 400 plus runs, okay, and we won it by a good margin, okay, with 141 runs, okay. Ashwin also took 12 wickets. Second, again 400 plus runs. ODI matches were the same over there, that India won by 5 wickets. Second one as well, India was all out at 181. West Indies won that by 6 wickets, but the thing was that Rohit and Kohli were given rest at that time, okay. In the third one, we again performed really well. It was like 351 of the score. But the thing to notice over here is that India won it by 200 runs, which is a really good margin when it is in the reference to ODIs. And then we step to T20 matches where West Indies just thrashed us out. Okay, this was a very unique performance they displayed over there. That the first T20,
West Indies won it by 4 runs. Second one, West Indies win by 2 wickets. Third one, India took some stage over there, and then India won it by 7 wickets. And the fourth one, India won it by 9 wickets. Fifth one was the series decider, where West Indies won it by 8 wickets. So it was, you can say, when it is to be said of youngster, it was pretty good performance. And let's discuss with our team, like how is it and how they rate India, because we are just now going towards the World Cup. Yes, Shiva. So I think the overall performance kept degrading. First we had the test, almost एकदम perfect test matches हुए. काफ़ी time बाद we saw Virat Kohli's एकदम flawless 100. Rohit Sharma was in the runs, 100, couple of 50s. So it was very reassuring because काफ़ी 3-4 साल से India's top 4 was performing very poorly. They had an average of 30s. So that was very reassuring that our batting order was very short now, and as well as Yashasvi Jaiswal on debut scoring a 170. And for his age, that was a very matured innings. But every time we say that Virat Kohli is coming back to the form, I think so. इसको तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया ये विराट कोहली अपनी फॉर्म से पीछे चला गया था. वो एक फॉर्मेट में एक फॉर्मेट में फॉर्म में है ना. पहले T20 में है, फिर ODI में है. Let's hope कि वर्ल्ड कप तक ODI में फॉर्म में आ जाए. But the thing is, पाकिस्तान के अगेंस्ट हमें 100 चाहिए ऐसा कुछ. बट विराट कोहली इज़ फॉर श्योर अ बिग मैच प्लेयर. आई थिंक सो कि वो उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे वर्ल्ड कप में. तो मैं होप करके बैठा हूँ कि एटलीस्ट 2 से 3 100 तो होनी चाहिए विराट कोहली की. I think the record to break is Rohit Sharma's 500 in last World Cup. रोहित शर्मा लास्ट टाइम वर्ल्ड कप के टाइम पे ही परफॉर्म रियली वेल. ठीक है, विराट कोहली एट दैट टाइम वाज नॉट नियर हिम. अभी इस टाइम पे मेरे को लग रहा है दिस कैन बी विराट कोहलीज बेस्ट वर्ल्ड कप ओवर हियर. best and probably last. So probably that way last. is best. Although our fans Not would hopefully, like but to, probably. yeah, our friend. अगर बेस्ट नहीं हो तो डेफिनेटली लास्ट. अगर बेस्ट हुआ तो शायद we can see. या सो अभी वेस्ट इंडीज सीरीज में काफ़ी ज़्यादा युवाओं को भी लेके आए ये लोग, यंगस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया. वी कैन सी यशस्वी और देयर तिलक वर्मा. लाइक तिलक वर्मा तो मेरे ख्याल से अमंग द बेस्ट परफॉर्मर था इस सीरीज़ में. ठीक है, जिससे हमें क्या एक्सपेक्टेड भी था द वे ही परफॉर्म्ड इन IPL. ओके, और यशस्वी ने भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया. You would like to say something about him? I think every 8 or 10 years एक दो प्लेयर ऐसे आते हैं. नॉट लाइक विराट कोहली वाला टैलेंट इज डिफरेंट, बट ऐसे प्लेयर्स आते हैं जो आपको लगता है कि सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा. मे नॉट बी द बेस्ट टैलेंट अराउंड, बट जो भी आपको 10 साल से प्रॉब्लम आ रही थी ना, वो सॉल्व कर देगा. जब इरफान पठान आए थे तब वो प्रॉब्लम ऐसे लगा था शायद सॉल्व हो गई. इतनी स्विंग बॉलर अपन को शायद फर्स्ट टाइम मिला है, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर मिल गया. और अभी तिलक वर्मा के साथ ऐसा लग रहा है बिकॉज मिडल ऑर्डर में युवराज सिंह के बाद से वी वर स्ट्रगलिंग कि कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नहीं है नंबर 4 पे, नंबर 5 पे. एंड ही लुक्स एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर. T20 या ODI टेस्ट मैच प्लस इस एज पे जो टेम्परामेंट है, दैट इज आई थिंक व्हाट स्टैंड्स आउट. एंड इस वजह से आई थिंक ही हैज़ बीन टेकन टू एशिया कप ऑल्सो. Yes. Yeah, definitely looking forward to his involvement in Asia Cup. प्लस आई थिंक ही bowls पार्ट टाइम ऑफ स्पिन बिकॉज आजकल टॉप ऑर्डर ने तो बॉलिंग करना छोड़ ही दिया है. और हमारे पास ऑफ स्पिन है ही कौन, मतलब है बट नहीं ले But do you रहे. think that's the reason Hardik Pandya, because he was not using part-timers अपार्ट फ्रॉम हिमसेल्फ. apart from himself? बट अब Well, जैसे he was a part-timer, maybe. अभी ये जो But, लास्ट कॉन्फ्रेंस था, जो अभी लास्ट जो कॉन्फ्रेंस था रोहित शर्मा का था, अजीत अगरकर भी थे. उन्होंने उसमें ये बोला, जैसे जोक करा कि इफ़ अगर बॉलर की ज़रूरत पड़ी तो मी एंड कोहली कैन बॉल. सो आई थिंक सो अगर तिलक वर्मा वहाँ रहते हैं, ही कैन बी अ बेटर चांस रोहित और कोहली Yeah. से. Do you think like his bowling is what, like? नहीं, इट्स नॉट कि आपको सहवाग से तो हाँ, बट इट्स नॉट कि आपको सारे मैच में खिलाना है. बट आपको जैसे चेन्नई में मैच है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तब वहाँ पे इवन द थर्ड स्पिनर भी वुड बी वेरी यूजफुल. That's true. अच्छा टर्निंग ट्राई किया तो आपको पार्ट टाइम स्पिनर भी अच्छे ओवर निकाल के देगा. मैंने मतलब हिस्टोरिकली देखा हुआ है कि जो पार्ट टाइम बॉलर्स होते हैं ना, दे कम अप विद क्रूशियल विकेट्स. एग्जैक्टली. अब मतलब मेरे They can turn the matches. युवराज सिंह एंड आई थिंक तो शाहिद अफरीदी, these two were those gems of their cricket teams, India और पाकिस्तान के. शाहिद अफरीदी जब भी आता था, कैसी भी बॉल हो, But Shahid Afridi was a more regular bowler. He used to actually bowl full quota most of the times. Suresh Raina also bowled.
I'm talking, let's say, people like Sachin Tendulkar. सहवाग is one. Definitely 5-6 ओवर ODIs में निकाल देता था वो. Mohammad Cap, he used to bowl. Cap never bowled. But Yuvraj Singh इवन बीच में 2-3 साल हमने केदार जाधव को काफ़ी बॉलिंग में यूज़ करा था. या ज़्यादा. So I think this part-time bowler will be crucial, especially in Asia Cup. Asia Cup, yeah. Asian स्पेशली अपने जो वर्ल्ड कप एशिया कप का स्क्वाड लिया है उसमें अपने पास कोई ऑफ स्पिनर नहीं है. अब बॉलर और ऑलराउंडर की बात हो रही है तो लेट्स जस्ट गो टू अक्षर पटेल एंड रविंद्र जडेजा. ओके, हम क्या इन दोनों को एक साथ खिला सकते हैं? हमें एक एक करके दोनों को खिलाना पड़ेगा क्योंकि वो स्पेस भी हमें देखनी है कि हमें बैटिंग भी चाहिए एंड तक और बॉलिंग भी चाहिए लंबे तक. मतलब थोड़ा सा लगता है कि एस्केप है कि एक बॉलर जो बैटिंग भी कर ले, बट आई डोंट थिंक अभी हार्दिक पांड्या कैप्टनसी में हमने देखा कि या तो अक्षर पटेल ने 6 ओवर में 4 ओवर डाल दिए, 3 ओवर डाल दिए स्टार्टिंग के, या फिर पूरे मैच में बॉलिंग नहीं डलवाई हार्दिक पांड्या ने, बिकॉज सामने निकोलस पूरन थे, लेफ्ट हैंडेड थे, अच्छा मारते हैं. तो ऐसे आपके पास वर्ल्ड कप में भी होने वाला है और जडेजा ऑलरेडी बॉलर रहेंगे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिट बोथ ऑफ देम अनलेस पूरी टीम में राइट हैंडर्स भरे पड़े हैं. उन मैचेस में वी कैन सी मे बी अक्षर एंड Jadeja bowling together. Yeah. I think so that will be a strong team as well. And in fact, अगर आप अक्षर पटेल को नहीं ले रहे हैं तो आप शार्दुल ठाकुर is like dependable person. I think in those series में शार्दुल ठाकुर didn't get a lot of opportunities, but he has made himself hard to drop. अभी third ODI में भी he took 4 wickets. So किसी ना किसी में contribute कर ही देते हैं. विकेट कैसे मिलते हैं कोई जानता नहीं है, बट हमेशा मिल जाते हैं. यस, वो एक चार्म होता है ना बॉलर का, बैट्समैन का, कि मतलब बस कर देता है, वो बना ही उसके लिए. चलो, हेयर वी कम टू अनदर थिंग ऑफ हार्दिक पांड्याज कैप्टनसी. दो अब हम सबको पता है कि हार्दिक पांड्या इज नॉट सपोज टू बी ODI कैप्टन, बट फॉर सीइंग द फ्यूचर साइड वाइस कैप्टन है. और हम कैसे देख रहे हैं कि हार्दिक पांड्या कैसे टीम को हैंडल करते हैं, जो कि लोग ऐसे बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि उनके जो कंट्रोवर्शियल उनके जवाब आए थे कि अब लाइक वी विल लर्न एंड ऑल दैट. ठीक है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आई थिंक डिफरेंट एनवायरनमेंट, एक टाइप ऑफ कैप्टनसी डज नॉट सूट्स ऑल डिफरेंट टीम एनवायरनमेंट. जैसे उनका गुजरात टाइटंस में आई थिंक ही इज़ डूइंग वेरी वेल विद आशीष नेहरा एंड इज़ अ वेरी वेरी सॉलिड बॉलिंग लाइनअप देयर. मोहम्मद शामी है, राशिद खान है, तो वहाँ पे उनका एग्रेसिव स्टाइल सूट करता है. बट इंडिया में इंडियन सेटअप में थोड़ा आई थिंक इट्स लैकिंग अ बिट. रिसोर्सेज को फुल यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. दैट्स व्हाट आई थॉट. बॉलर्स को सही से बॉलिंग डल पा रहे हैं. बैटिंग ऑर्डर 4, 5, 6, 7 पे ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, कभी इनफ फ्लेक्सिबल नहीं था. तो आई थिंक इट्स अ लर्निंग कर्व. बट अभी जो पहले कॉन्फिडेंस था कि रोहित शर्मा के बाद यही लेने वाले हैं, वो अब उतना नहीं रहा. राहुल, आप बताइए कि चलो अगर अपन इसको ऐसे देखते हैं कि अगर अपन ओपन ODIs में शुभमन गिल और ईशान किशन से करवाते हैं, जो कि ऐसे तो सपोजिटली नहीं होना चाहिए कि रोहित शर्मा इज़ देयर ऑन द टीम, तो ये शुभमन गिल का परफॉर्मेंस इतना खास रहा नहीं अभी. इज इट जस्ट अबाउट बिकॉज वो इंडियन पिचेस पे अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं? मुझे तो लगता है कि ये पार्टनरशिप doesn't work, right? And since Rohit is there, मतलब हमें and I think plus ईशान किशन खुद कभी-कभी स्लो स्टार्टर होते हैं, तो हो सकता है कि शुभमन गिल पे भी थोड़ा प्रेशर हो कि मेरे को स्टार्ट देना है. ईशान किशन थोड़ा स्टक है. एंड रोहित शर्मा ऐसा प्लेयर नहीं है, तो रोहित शर्मा इज़ अ मच बेटर पार्टनर टू हैव. वो अपने फ्री फ्लो में जाते हैं. ही प्लेज वेरी सेल्फलेस क्रिकेट. इस वजह से आई थिंक दैट वुड बी बेटर. एंड होम कंडीशंस में खेलेंगे वर्ल्ड कप, तो आई थिंक दैट वुड बी हेल्पफुल टू हिम एज वेल. यस. बट इस बार ईशान किशन ने जो स्टार्ट दिया इंडियन क्रिकेट टीम को, वो एक अच्छा स्टार्ट था. जो मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा एनिमेटेड प्लेयर से लगते हैं कि वो हमेशा कुछ ना कुछ हरकत कर रहे होते हैं कि सामने वाली टीम को हमेशा सोचना पड़ता है यार ये क्या प्लान करिए. आउट तो हो जाएगा पर कब आउट होएगा ये इसका कुछ पता नहीं है. एंड ही हैज़ ऑलरेडी स्कोर्ड अ 200, सो दैट्स अ बिग होप विद हिम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट संजू सैमसन. हम बार बार ये बोलते आए हैं कि संजू सैमसन को मौका नहीं मिल रहा. अभी उनको मौका भी मिला, उनको चांस भी मिला और उन्होंने कुछ मैचेस में परफॉर्म भी किया, कुछ में शायद वो हमारी एक्सपेक्टेशन से पहले आउट हो गए. ठीक है, उसके बारे में आई डोंट थिंक संजू सैमसन मतलब विद द काइंड ऑफ टैलेंट जो हमारे पास है अभी,
बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मतलब मुझे फील हुआ कि जो उसको अभी मौका मिला था उसने डिडंट ग्रैब दैट चांस विद बोथ हैंड्स, तो इट्स गोना बी टफ फॉर हिम। मतलब इंडियन टीम में जैसे बैटिंग पोजीशन लेने के लिए आपको जो परफॉर्मेंस देना चाहिए वो नहीं आया। इट वाज नॉट बैड, बट इंडियन टीम में एंट्री के लिए मतलब कहीं ना कहीं हम वो परफॉर्मेंस हम ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा की तरफ से ज़्यादा देख पा रहे हैं। आई थिंक अभी सैम्पल साइज थोड़ा छोटा है ऋतुराज गायकवाड़ का, उनकी ओडीआई एवरेज भी 20-30 ही है 10 मैचेस के बाद। तो जो CSK का आई थिंक 10 इंटरनेशनल मैचेस के बाद CSK वाला परफॉर्मेंस अभी तक ट्रांसलेट अभी तक तो नहीं कर पाए कंसिस्टेंसी, बट यस तिलक वर्मा ने T20 में कंसिस्टेंसी दिखाई है। बट संजू सैमसन का आई डोंट थिंक कंपटीशन है ऋतुराज के साथ, वो मिडिल ऑर्डर प्लेयर हैं, विकेट कीपर हैं, ऋतुराज इज एन ओपनर, तो उनका कंपटीशन एक तो ईशान किशन के साथ है क्योंकि कीपर है, एंड मे बी सूर्य कुमार यादव के साथ है। KL राहुल एज वेल इफ यू विल कीप। KL राहुल अभी तो आई थिंक पैकिंग ऑर्डर में ऊपर है, बट जैसे कि KL राहुल को अभी फाइनल 17 में लिया है, फाइनल 18-17 में लिया है, और संजू सैमसन को रिजर्व रखा है। ठीक है, ODI की तरफ से अगर देखा जाए तो मैं स्टिल जाने क्यों मैं संजू सैमसन को ज़्यादा भरोसेमंद समझता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर है जो कि रिपीटेडली वो IPL में जिस टीम से खेल रहे हैं, ठीक है, उनको फाइनल्स के कहीं ना कहीं आसपास लेके जा चुके हैं। अभी लास्ट टाइम पे फाइनल्स तक में लेके गए थे, लास्ट टाइम पे, ठीक है, वो हम वहाँ जाके हार गए, बाकी सारी चीज़ें हुई, बट मुझे लगता है एक एक्सपीरियंस के हिसाब से ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन टू टेक। आई थिंक वो जगह तब खुलेगी जब KL राहुल थोड़ा परफॉर्मेंस उनका डाउन होगा, क्योंकि अभी श्रेयस अय्यर और KL राहुल दोनों हमने पिक कर रखे हैं। चलो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस, ठीक है। एंड नाउ लेट्स कम टू आयरलैंड। ओके, हमने आयरलैंड के साथ ऐसे तो हमें 3 T20s खेल रहे थे, ठीक है, हमने पर 2 ही खेल पाए, जबकि मैं बोलूँ शायद 1.5 ही खेल पाए क्योंकि एक तो वॉश्ड आउट हो गया बारिश की वजह से, ठीक है। तो पहला वाला जो था उसके अंदर डकवर्थ लुईस रूल्स की वजह से हमने 2 रन के एवरेज से हमने वो वाला गेम जीता, ठीक है। और जो सेकंड वाला था उसमें इंडियन क्रिकेट टीम ने मेरे ख्याल से अच्छा परफॉर्म किया, बिकॉज अगर अपन 33 रन से जीत रहे हैं 33 रन से, दैट्स अ गुड मार्जिन T20s के रिलेशन में, और फिर तीसरा तो हुआ ही नहीं। तो लेट्स टॉक अबाउट द टीम दैट बुमराह सरप्राइज्ड अस कि यार पहले तो ये था बुमराह कहाँ है, लोग मीम डाल रहे थे, अब तो शर्म कर ले बुमराह ठीक है, और एकदम से बुमराह आते हैं, बुमराह सीधा कैप्टनसी पकड़ता है और मैन ऑफ द सीरीज ले जाते हैं, एंड मेरे ख्याल से उन्होंने जो पहला ओवर किया था उसमें उन्होंने 2 विकेट्स निकाले थे, ठीक है। आई डिडंट सॉ अ लॉट ऑफ पेस कमिंग फ्रॉम हिज साइड, ठीक है, बट वो एक जो इंटेलिजेंस होती है बॉलिंग, आई थिंक आफ्टर द मैच ही सेड कि आउटफील्ड भी थोड़ा गीला था, तो इसलिए रिस्की रनअप लेना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए वो रनअप में ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जा रहे थे, इसलिए उनका स्पीड स्टार्टिंग में स्लो था। सेकंड T20 में ही स्टिल आई थिंक हिट 144, तो आई थिंक स्टार्टिंग इतना ज़रूरत नहीं था ज़्यादा एग्रेसिव जाने का, आयरलैंड के साथ बायलैटरल T20s है, आई थिंक इट वाज अ राइट वे फॉर हिम टू प्रोग्रेस आल्सो। यस एंड सेकंड लाइक एक तरफ से अगर बुमराह है तो एक तरफ से हमारे पास प्रसिद्ध कृष्णा भी हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बातें हुई, वो भी अपनी इंजरी से आ रहे थे, उनके बारे में अपना क्या व्यू है? आई थिंक मेरा तो वो सेकंड प्रेफर्ड चॉइस आफ्टर बुमराह ODI वर्ल्ड कप में भी, ऑल्दो ही माइट नॉट मेक द 15 आल्सो, बट मेरे को स्लाइटली ही लुक्स अबव इवन शामी एंड सिराज। Yeah, that's a big thing. Hot take of the day. That's a very big thing that hopefully gets chances in Asia Cup. I think so. I think so. We look should. forward to. अगर हमारे पास ये एक जोड़ी आ जाती है बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा की, तो हमारे पास एक बेटर टेक होएगा। जैसे हमारे पास पहले भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी की हुआ करती थी, इट वाज जस्ट लाइक स्विंगिंग, फर्स्ट जो फ्रेश बॉल होती थी हम उसको स्विंग करते रहते थे, ये भी एक अच्छा है, ठीक है। तो चलो ये सब तो ठीक रहा, लाइक वी आर ऑन द राइट प्लेस अभी, बट चलो अभी भी मेरे माइंड में अभी यही क्वेश्चन है कि इन सबको जो हमने पूरा जो एक टेस्ट लिया हमारा वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड के साथ खेल करके, हम अब इंडियन क्रिकेट टीम को किस पोजीशन में देखते हैं, कितना हम मजबूत है, ठीक है। हम लोग, हमारे पास विकेट कीपर्स कौन है जो हमने चूज़ किए हैं, हमारे पास ओपनर्स कौन है, हमारे पास बॉलर्स कौन है, लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट इट फॉर द वर्ल्ड कप। अच्छा सर, लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब वर्ल्ड कप के लिए कहाँ तक तैयार है और क्या आंसर्स हमें नहीं मिले हैं।
उसमें मुझे लगता है सबसे बड़ा क्वेश्चन इज़ अराउंड ईशान किशन। ठीक है, वो बैकअप कीपर है, लेकिन हमेशा उन्होंने ओपनिंग करी है, मिडिल ऑर्डर बैटिंग कभी की नहीं। और KL राहुल का अगर वो बैकअप है तो उन्हें मिडिल ऑर्डर में बैट करना पड़ेगा। सो हाउ डज दैट इक्वेशन वर्क? आई थिंक 3 ODIs थे, वहाँ पे भी वी कुड हैव ट्राइड हिम इन द मिडिल ऑर्डर 1-2 मैचेस में कि हाउ डज ही फेयर्स, उनको प्रैक्टिस से मिल जाता। अभी तक न्यू बॉल खेल रहे हैं, बाद में एकदम से टर्निंग ट्रैक्स पे स्पिन खेलना पड़ेगा जब वो क्रीज पाएंगे, तो दैट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज। या और एक ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन बन रहा है कि हमने युजवेंद्र चहल को भी बाहर रखा है एशिया कप से, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एशिया कप अभी जो नहीं खिला रहे हैं, और अगर हम उनको एशिया कप नहीं खिला रहे हैं तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है हम उनको वर्ल्ड कप भी शायद नहीं खिला रहे हैं। I think that call was to be taken for sure because अक्षर कुलदीप और चाहल दोनों बैट एक साथ नहीं बॉलिंग कर सकते हैं because both do not contribute in any other way. The great कुलचा जिसको हम बोला जाता है, क्योंकि वो ना बैटिंग करते हैं ना फील्डिंग भी अच्छी नहीं करते। If one of them was a fielder as good as जडेजा तो मे बी हम सोचते कि 10-15 रन फील्ड में बचा लेगा, तो इसलिए भी अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर को उनमें से एक को खिलाना पड़ेगा। बॉलर्स में हमारे पास क्या ऑप्शंस है? ऑप्शंस आई थिंक 4 पेसर्स हैं, उनमें से 3 सेलेक्ट करने पड़ेंगे शायद वर्ल्ड कप के लिए। तो शार्दुल ठाकुर इज ऑलरेडी देयर, मतलब या इट लुक्स लाइक या हार्दिक पांड्या वो भी आई थिंक सर्टेन स्टार्टर ही हो गए। बाकी जो 4 प्योर पेसर है, बुमराह, शामी, सिराज और प्रसिद्ध, उनमें से 3 लेने का पॉइंट है। या टफ कॉल टू मेक। आई वुड हैव I would take शार्दुल, शमी, नहीं शार्दुल, बुमराह and सिराज. What about you? बुमराह तो लोग ही। No, after listening to Shubham, I think I'll take Prasidh instead of Shayad. More. Yeah, some new blood, yeah, something fresh for people to. And plus वो क्या ना, entire world is not very used to him. Exactly. तो उनके सामने एक नया वेपन Yes. could be a good idea. I want our viewers as well to आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको 3 या 4 अगर आपको पेसर्स पिक करने हो, ठीक है, वर्ल्ड कप में खिलाने के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एशिया कप, तो आपके क्या चॉइसेस होंगे, क्या आप रखेंगे, ठीक है। और बैट्समैन एंड आई थिंक ईशान किशन या संजू सैमसन, उससे भी कमेंट करना। संजू सैमसन, मैं तो सपोर्ट करता हूँ संजू सैमसन को पूरे दिल से। कोई बात नहीं। Thanks for watching this video. This video was brought to you by Bold.io. Bold.io is a fantasy trading and cricket games app. Okay, over there you can play multiple games which are totally related to cricket, as well as play fantasy games, trade your cards, and just choose your favorite player and then earn some money. Yeah.